નમોસ્તુ 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 નમો લોય શૌત્રિકાળવર્તી અરહંતાણમ નમો લોય શૌત્રિકાળવર્તી સિદ્ધાણમ નમો લોય શૌત્રિકાળવર્તી આયર્યાણમ નમો લોય શૌત્રિકાળવર્તી ઉવજ્જાયણમ નમો લોય શૌત્રિકાળવર્તી શવશાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદકુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતુ શાસનમ નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાશતે ચિત્ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચ્છિદે એગો મેં શાસદો અપા જ્ઞાન દર્શન લખણો શેષા મેં બાહિરા ભાવા સવ્વે સંયોગ લખણા મારો સુશાશ્વત એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે, બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે. હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે. જે જાણતો અરંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાય બને, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે. નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે. એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે. જમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને. ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું સુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાકૃત હો. પુસ્તાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ તે હને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે. ઓમ શ્રી નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય. હિન્દીમાં લખવાનું છે, ગુજરાતીમાં કુંદકુંદાચાર્ય દેવ દ્વારા રચિત સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્રની રચના કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાને 2000 વર્ષ પૂર્વે પોનુર હિલ ઉપર પંચ પરમાગમની સ્થાપના કરેલી. કુંદકુંદાચાર્ય સદૈવ 2000 વર્ષ પૂર્વે પોતે 8 દિવસ માટે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર ભગવાનની દેશના સાંભળવા અહીંયાથી ગયેલા. તેને તીર્થંકર પરમાત્માનો વિરહ લાગતા અને તેમની પાસે એવી કોઈ લબ્ધિ હતી ને દેવો તેમના મિત્રો હતા, તો અહીંથી તે પોતે સદેહે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની યાત્રા કરવા ગયેલા. ત્યાં 8 દિવસ રહી સિમંદર ભગવાનની સાક્ષાત દેશના સાંભળી અને શ્રુત કેવડીઓ સાથે ચર્ચાઓ કરી અને અહીંયા પાછા પોનુર હિલ ઉપર પધાર્યા. અહીંયા આવ્યા બાદ તેમણે પંચ પરમાગમની રચના કરી. પંચ પરમાગમમાં પ્રથમ જે શાસ્ત્ર દ્વિતીય સ્કંદનું રચવામાં આવ્યું એ પ્રવચન સારજી શાસ્ત્ર, જે દિવ્ય ધ્વનિનો સાર, તેની રચના તેમણે પ્રથમ કરી. દિવ્ય ધ્વનિનો સાર જે પ્રવચન સાર છે, એમાં આખી પદાર્થની સિદ્ધિપૂર્વક સમ્યક જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રગટ થાય અને સમ્યક જ્ઞાન સ્વરૂપ આખો આત્મા કેવો હોય તેની ચર્ચા પ્રવચન સારમાં આવેલી છે. નિયમસાર શાસ્ત્ર કુંદકુંદાચાર્ય દેવે પોતાની નિજ ભાવના અર્થે બનાવ્યું. તેમાં નિયમસારજી શાસ્ત્રમાં તેમણે પોતાની ભાવનાને દ્રઢ કરવા માટે શાસ્ત્રની રચના કરી. કે જે કાંઈ મારો શુદ્ધાત્મા છે એ શુદ્ધાત્મા પરિપૂર્ણ છે. મારું જીવ તત્વ જે છે એ સદાય શુદ્ધ ને શુદ્ધ રહેલું છે. એવા શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ તો તેમને થયેલી
પ્રચુર સ્વસંવેદન પૂર્વકનું, ત્રણ કસાયના અભાવપૂર્વકનું વેદન પણ જેમને નિરંતર ચાલતું હતું, એવા જે કુંકુંદ આચાર્ય દેવે પોતાની ભાવના અર્થે નિયમ સારજી શાસ્ત્રની રચના કરી. એ નિયમ સારજી શાસ્ત્રમાં નિરંતર પોતાની ભાવના જ ઘૂંટતા રહ્યા. એ આવી ભાવના પોતાના શુદ્ધ તત્વની, પોતાના અપરિણામી તત્વની, પોતાના ધ્રુવ તત્વની ભાવના ઘૂંટતા ઘૂંટતા સપક શ્રેણી ચડી અને હમણાં જ અમે મોક્ષમાં બિરાજમાન થઈ જાશું એવા સાધ્યની ભાવના અર્થે ધ્યેયના આશ્રયપૂર્વક નિરંતર વર્તતા એવા જે ત્રણ કસાયના અભાવપૂર્વકના પ્રચુર સ્વસંવેદનના ધણી એવા જે કુંકુંદ આચાર્ય દેવે નિયમ સારજી શાસ્ત્ર પોતાની ભાવના માટે રાખ્યું. અને જે સમય સારજી શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવી, એ સમય સારજી શાસ્ત્ર અનાદિનો અપ્રતિબુદ્ધ જીવ ક્ષણ માત્રમાં તત્કાલ પ્રતિબુદ્ધ કેવી રીતે થઈ જાય એના માટે સમય સારજી શાસ્ત્રની રચના કરવામાં આવી. આવા પંચાસ્તિકાય અષ્ટપાવડ એવા પંચ પરમાગમની રચના કુંકુલ આચાર્ય દેવે કરી. એમાં આ જે પંચ પરમાગમમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામી, આપણા ધર્મપિતા, એમને જ્યારે આ સમયસાર હાથમાં આવ્યું 1978માં, ત્યારે તે 1978માં શાસ્ત્ર આવતા જ એની પરિણતિ અંદરથી બોલી ઉઠી કે આ તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે. જે हिंदी में समय सारजी शास्त्र 1978 में उसके हाथ में आते ही उसने ऐसी घोषणा कर दी, ऐसा जयघोष किया कि अशरीरी अगर होना हो तो ये शास्त्र में अशरीरी होने की विधि पड़ी हुई है. उसको हाथ में आते ही पता चल गया कि अशरीरी होने के लिए यही शास्त्र निमित्त पड़ सकता है. ऐसा ये उत्कृष्ट जिनागम, उत्कृष्ट परमात्मा तत्व को बताने वाला ये जो समयसार शास्त्र है, वो निमित्तपणे जो समयसार है वो अपना समयसार सुधात्मा है, उसको बताने वाला ये शास्त्र है. ये शास्त्र में ऐसी अपनी निज निधियाँ लिखी हुई है कि उसको सुन के पढ़ के ऐसा ही लग जाए कि वास्तव में मैं सिद्ध समान परमात्मा ही हूँ. ऐसा ये शास्त्र में ऐसी ऐसी गाथाएं छिपी हुई है, ऐसी ऐसी बातें कुंकुल आचार्य देव ने लिखी है. और कुंकुल आचार्य देव के बाद में 1000 साल के बाद में जो अमृतचंद्र आचार्य हुए, वो अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंकुल आचार्य देव की जो गाथा थी उसके गर्भ में जाके उसकी टीका लिख के इतना विस्तार किया और वो विस्तार में बहुत से गूढ़ भाव और सूक्ष्मता भरी हुई थी. और वो जो चित्रीकरण अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिख के कर दिया, उसके बाद में पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ तो उसने उस टीका जो थी उसकी टीका ऐसी की कि पंचम काल के सभी जीवों को उसकी भाषा में समझ में आ जाए, एकदम सरल भाषा में, एकदम सरलता से आगम का सार, जो आगम का सार अध्यात्म होता है, उसको निकाल के मूलभूत अध्यात्म अपने को परोस दिया. ऐसा जो ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो अपने ऊपर उपकार है, 19 बार उसने ये समयसार शास्त्र जाहिर में उसका स्पष्टीकरण किया और सैकड़ों बार तो अपने अंदर में इसको गर्भित कर दिया. ऐसा ये समयसार जी परमागम शास्त्र है. वो समयसार जी परमागम में 332 से 344 गाथा है. 332 से 344 गाथा का एक पैराग्राफ है, उसमें बहुत वेद ज्ञान की विधि की अच्छी बात लिखी हुई है. वो अपन पढ़ के अपने क्षय सम के अनुसार सब साधन भाइयों बहनों चर्चा करेंगे.
अनादिकाल से जीव अपना स्वभाव का अज्ञान होने के कारण अपनी खुद प्रज्ञा का दोष से मिथ्यात्व और राग द्वेष को अपना मानता हुआ चल रहा है। राग द्वेष का परिणाम प्रति समय चल रहा है और उसमें मोहादि करके मिथ्यात्व की उत्पत्ति अनादिकाल से जीव की एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में चल रही है। वो क्षण मात्र में भेद ज्ञान करके कैसे चली जाए, ऐसी बात इसमें बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। समय सार का तो कोई भी गाथा आप ले लो, कोई भी पेज निकाल के पढ़ लो, तो उसमें भेद ज्ञान की निधियां भरी है और भेद ज्ञान करके अभेद में कैसे चला जाए जीव, उसकी परिपूर्ण विधि उसमें शामिल करके ये समय सार की शास्त्र में भरी हुई है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की जो गाथा है उसमें 487 समय सार की शास्त्र का पेज है। उसमें लिखा है ये गाथा जो है वो जो कर्ता स्वभाव को विपरीत भाव का कर्ता स्वभाव अपने को नहीं मानता है, उसका निषेध के लिए, उसका खंडन करने के लिए और अपना स्वभाव का मंडन करने के लिए ये गाथा लिखी गई है। और ये गाथा में जो पैराग्राफ एक आया है उसमें पूरा भेद ज्ञान भरा है। इसीलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षाएं ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी ज्ञायक भाव माने अपना त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परमात्मा ज्ञान, आनंद और सुख की अनंत गुणों की लक्ष्मी से भरा पड़ा अपना चैतन्य तत्व जो इसको ध्रुव बोला जाता है, वो अपरिणामी तत्व, शाश्वत तत्व, एक रूप तत्व, नित्य तत्व, परम परिणामी भाव लक्षण से लक्षित और अपने ज्ञान आनंद की लक्ष्मी में विराजमान जो शुद्धात्मा है उसे ज्ञायक भाव बोला जाता है। ज्ञायक भाव में कोई अप्रमद प्रमद दशा नहीं होती, ऐसा वो भूतार्थ स्वभाव है। कोई भी अभूतार्थपना उसमें टिकता नहीं, उत्पाद से रहित, सर्व पर्यायों से पार, ऐसा एक जो ध्रुव तत्व है उसे ज्ञायक भाव छठी गाथा में कहा है कि तू एक ज्ञायक भाव है, तेरे में अप्रमद प्रमद दशा सचमुच में नहीं है, तू अपनी उसको मान के बैठा है, वही सचमुच में तेरा अज्ञान है। तो इसमें लिखते हैं कि ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव सदैव ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है, रागादि भावों से अवस्थित नहीं है, मिथ्यात्व भावों से अवस्थित नहीं है, एक समय की बहिर्लक्षी परिणति से अवस्थित नहीं है। अपना जो चैतन्य तत्व है वो अपने ज्ञान स्वभाव से निरंतर अवस्थित रहता है। ज्ञान कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं और ज्ञायक का ज्ञान स्वभाव कभी मिटता नहीं, ऐसा चैतन्यपना लेके अपना ज्ञायक भाव विराजमान है। वो ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षाएं माने अपने स्वभाव की अपेक्षा से, अपना नित्य रहने की अपेक्षा से वो ज्ञान स्वभाव में ही अवस्थित रहता है। ऐसा जो अपना ज्ञायक भाव है टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, अभेद आत्मा है, अखंड आत्मा है, अपरिणामी देव है, शाश्वत परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, वही चैतन्य तत्व मैं हूँ और वो तत्व निरंतर ज्ञान स्वभाव में अवस्थित रहता है। ज्ञान स्वभाव के बाहर उसको ढूंढने जाए तो उसमें वो मिलता नहीं है, क्योंकि उसका रहने का स्थान, उसका रहना, उसका जो बेस जो है वो ज्ञान स्वभाव है। वो ज्ञान स्वभाव से टिका हुआ है, वो ज्ञान में रहता है, दूसरी कोई वस्तु में वो रहता नहीं है, वो निरंतर ज्ञान में रहता हुआ ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर ऐसा तो स्वरूप है। ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसा तो उसका स्वरूप है, ऐसा तो उसका स्वभाव है। मगर ऐसा अवस्थितपना होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों का ज्ञान समय पर प्रत्येक
जीव के बहिर्लक्षी परिणमन में कर्मकृत मिथ्यात्व आदि जो भाव है, कर्मकृत माने कि कर्म का उदय प्रति समय चलता रहता है, उसके निमित्त से मिथ्यात्व का उदय चलता है। ऐसा कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव, मिथ्यात्वादि भाव को जीवकृत नहीं बोला, मिथ्यात्व आदि भाव है। मिथ्यात्व आदि माने मिथ्यात्व अविरत प्रमाद तथा योग, सभी तरीके के जो आश्रव रूप भाव है, वो आश्रव रूप भाव वो कर्मकृत है, वो जीवकृत नहीं है। जितने जितने आश्रव का परिणमन चल रहा है, वो आश्रव भाव नियम से, बहिर्लक्ष्य से, कर्म का निमित्त से, उसके ऊपर अपना लक्ष्य करके जो आश्रव चलता है, उसको कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव बोला जाता है। तो ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों का ज्ञान समय, मिथ्यात्व भाव को कहाँ डाला है कि मिथ्यात्व भाव कर्मकृत है, वो जीवकृत नहीं है। जीवकृत ज्ञान है, मिथ्यात्व आदि भाव कर्मकृत है। ऐसे विभाग है, कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं और ज्ञान भाव है वो जीवकृत होता है। तो जो कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव है, उसका ज्ञान का जो समय होता है, ज्ञान का समय, कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव निरंतर चलता है। एक समय की पर्याय में अज्ञानी के बहिर्लक्ष्य से जो कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव चलता है, उसको यहाँ उसका ज्ञान होता है, उसका ज्ञान का समय है, प्रति समय उसका ज्ञान का समय होता है। कर्म की सत्ता कर्म में है, मिथ्यात्व आदि भाव की सत्ता मिथ्यात्व आदि भाव में है। यहाँ ज्ञायक में ज्ञान की सत्ता है और ज्ञान की सत्ता में कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव जो है, उसका प्रति समय उसको ज्ञान होता है। क्या होता है? उसको ज्ञान होता है, उसको मिथ्यात्व नहीं होता है। उसको कर्मकृत मिथ्यात्व है वो उसमें नहीं होता है। जीव की अवस्था जीव जैसी होती है, उसको जीव की अवस्था बोली जाती है। तो जीव की अवस्था में ज्ञान होता है और ज्ञान से जो दूर, ज्ञान से जुड़ी जो भी अवस्थाएं रागादि भाव मिथ्यात्व आदि भाव की चलती है, वो सब सचमुच में जीव की न के कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव को कर्मकृत से अवैध करके ज्ञान को ज्ञायक में रखा है। ऐसा कहना चाहते हैं कि जब 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 मिथ्यात्व आदि भाव का उदय आता है, उसी समय उसको यहाँ ज्ञान का उदय चलता है। एक जगह मिथ्यात्व आदि भाव का उदय चलता है, यहाँ उसको ज्ञान का उदय चलता है। मिथ्यात्व आदि भाव कर्मकृत है, ज्ञान भाव जीवकृत है। यहाँ ज्ञान का उदय प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, अनादि से जानना जानना चल रहा है। कोई समय ऐसा नहीं आया कि जानना बंद हो गया हो और राग रूप वो हो गया हो, ऐसा कोई समय नहीं आया और ऐसा समय आने वाला भी नहीं है। ऐसा जो ज्ञायक भाव है, उसका जो ज्ञान रूप परिणमन है, वो ज्ञान में तो ज्ञायक बसता है, वो ज्ञान में तो ज्ञायकपणा अवस्थित है, वो उपयोग में तो उपयोगवान अवस्थित है, वो उपयोग में क्रोधादि की रागादि नहीं है। ऐसा जो मेरा ज्ञायक भाव, जो ज्ञान स्वभाव से अवस्थित निरंतर रहता है, कि जो ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान में निरपेक्ष द्रव्य सदैव बसता है, सदैव ज्ञान में ज्ञायक रहता है, सदाई ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है, सदाई उपयोग में उपयोगवान बस रहा है। ऐसा कहना चाहते हैं कि ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव सामान्य अपेक्षाएं अवस्थित होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों का ज्ञान का समय होता है। तब अनादिकाल से समय कैसा है? समय ज्ञान का है। मिथ्यात्व आदि भाव चलता है, उसको कर्मकृत बोला है। यहाँ ज्ञान का उदय चल रहा है और ज्ञायक भाव ज्ञान में अवस्थित है। ऐसी तो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था में कोई अज्ञान नहीं है, इसको तो व्यवस्था बोली जाती है।
कि ज्ञान का उदय है और ज्ञायक अवस्थित है, और आश्रव माने रागादि चल रहा है। अभी रागादि चल रहा है, उसका उसको भेद ज्ञान चल रहा है कि उसका एकत्व चल रहा है, उसके ऊपर उसका अज्ञान और ज्ञान का आधार रहता है। तो इसमें कहना चाहते हैं कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान समय पर अनादिकाल से जीव की भ्रमणा क्या चल रही है कि उस भ्रमणा का निमित्त से उसको अज्ञानी बोला जाता है। अनादिकाल से उसकी ऐसी भ्रमणा चल रही है कि ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान से शून्य होने लिखे, इधर ज्ञेय है इधर ज्ञान है, वो ज्ञेय पृथक है ज्ञान पृथक है, वो दोनों का अनादिकाल से जीव को भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान की शून्यता है। ज्ञेय मेरा नहीं है, ज्ञान भाव मेरा है, और वो ज्ञान में ज्ञायक बसता है। ऐसा ज्ञेय के प्रति से अपना उपयोग हटा के अपना उपयोग अपने ज्ञायक में ही बस रहा है। ऐसा भेद ज्ञान न होने के कारण पर को यानी ज्ञेय को वो आत्मा तरीके जानता है, माने कि उसको ज्ञेय और ज्ञान की एकत्व बुद्धि अनादि से चलती है, अनादि से एकत्व बुद्धि चलती है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है, ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जितने ज्ञेय है उसकी समीप में वो सब ज्ञेय उसमें प्रतिबिंबित होते ही रहते हैं, प्रति समय वो प्रतिबिंबित होते रहते हैं। यहाँ ज्ञान में जानना चलता रहता है, प्रतिबिंबित होना उनका ज्ञेय का प्रमेयत्व प्रदर्शित करता है, और ज्ञान अपने जानने का स्वभाव प्रति समय प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी व्यवस्था दोनों की होने पर भी अनादिकाल से उसकी भिन्नता का भान न होने पर दोनों पृथक पृथक है, दोनों की सत्ता अलग अलग है। एक की सत्ता में दूसरे की सत्ता प्रविष्ट नहीं हो सकती। ज्ञान की सत्ता कभी ज्ञेय में जाती नहीं, ज्ञेय की सत्ता कभी ज्ञान में आती नहीं। ऐसी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता अनादि से होने पर भी उसको ऐसा लगता है, जहाँ ज्ञान में प्रतिबिंबित स्वच्छता के कारण ज्ञेयों का होता है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे ज्ञान में ये चीज आ गई, मेरे ज्ञान में आश्रव आ गया, मेरे ज्ञान में मिथ्यात्व आ गया, मेरे ज्ञान में कर्म आ गया। ऐसा ज्ञेय के प्रति उसका भेद ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान का न होने से उसको निरंतर प्रति समय एकत्व बुद्धि चलती है, ज्ञेय और ज्ञान की, ज्ञेय और ज्ञान की। और वो एकत्व बुद्धि कैसे टूट जाए कि प्रथम में प्रथम वो अपने स्वभाव से अपने स्वभाव को देखने का परिचय करे। ये सब व्यवस्था समझ के कि कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भाव है, प्रति समय उसका ज्ञान का समय होता है, और प्रति समय वो ज्ञान में वो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। उसी समय मेरा ज्ञान तो ज्ञान का आकार रूप होने से मेरा ज्ञान में तो ज्ञायक ही बसता है, यानी कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं अनादि अनंत कुटस्थ ध्रुव अपरिणामी तत्व हूँ, मैं शाश्वत देव हूँ, मैं त्रिकाल परम परिणामिक भाव लक्षण से लक्षित ऐसी मेरी वस्तु है। और वो वस्तु जहाँ बसती है वो मेरा ज्ञान स्वभाव है, और वो ज्ञान स्वभाव में कभी ज्ञेय का प्रवेश हुआ ही नहीं है, ऐसा मान लिया है। वो मान्यता को ही मिथ्यात्व बोला जाता है। राग द्वेष आदि चलते हैं, वो ज्ञेय है, यहाँ ज्ञान होता है, और ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान की शून्यता के कारण वो ज्ञेय को प्रति समय मेरा मान रहा है। अभी वो ज्ञेय को प्रति समय मानना क्यों हो जाता है, उसका ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान का जो स्वभाव है वो जो प्रति समय उदित होता रहता है, तो वो ज्ञान का स्वभाव अंदर से जो निकलता है ना, वो प्रति समय ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान का स्वभाव जो
प्रति समय प्रकट हो रहा है, उत्पाद हो रहा है, वो प्रति समय ज्ञायक में से ज्ञान की किरण फूटती है, जो उपयोग लक्षण जिसको बोला जाता है, वो ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक प्रति समय चलता रहता है। वो स्वपर प्रकाशक होने से वो ज्ञान में स्व जैसा है, उसका स्व का भी ज्ञान का आकार होता है, और पर जैसा है ऐसा पर का ज्ञेय का आकार भी ज्ञान की स्वपर प्रकाशक एक समय की उपयोग नाम की अवस्था में चलता रहता है। प्रति समय वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान अपने से ही प्रकट होता है। अपना ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। वो पर के कारण पर प्रकाशक नहीं है और स्व के कारण स्व प्रकाशक नहीं है। ज्ञान का अपना उत्पाद रूप निरपेक्ष स्वतंत्र स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। वो नियम से स्वपर प्रकाशक ही रहता है। कभी पर प्रकाशक अकेला नहीं होता है और कभी स्व प्रकाशक अकेला नहीं होता है। नियम से प्रति समय ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक उदित प्रति समय होता है, और वो स्व पर प्रकाशक स्वभाव में ज्ञानाकार भी होता है, ज्ञायक जैसा ज्ञानाकार भी होता है, ज्ञायक स्वज्ञेय है और ज्ञान में उसका ज्ञानाकार होता है। और ये ज्ञेय है वो पर ज्ञेय है, तो उसका यहाँ पर प्रकाशक में ज्ञेयाकार प्रति समय बनता है। वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार एक समय की स्वपर प्रकाशक शक्ति से उसका उत्पाद प्रति समय होता है। वो सब ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार अपने स्वतंत्रता से बनते हैं। पर के कारण पर के ज्ञेयाकार ज्ञान का पर प्रकाशक में नहीं बनता है, और स्व के कारण स्व में ज्ञान का ज्ञानाकार स्वभाव नहीं बनता है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार वो एक समय की अवस्था में उपयोग नाम का ज्ञान में स्वतंत्रतया निरपेक्ष अपने सत्कारक से अपनी योग्यता से वो स्वयं उदित होता है। उसमें ना तो कोई पर का हिस्सा है, ना तो सचमुच में कोई स्व का हिस्सा है, क्योंकि अभी अपने को उसको निरपेक्ष देखना है। वो स्व में से बाहर निकल गया, बाद में उसका जो परिणमन होता है, उसकी जो अवस्था का उदय होता है, उसकी जो स्वपर प्रकाशक की प्रगटता होती है, वो स्वयं स्वतंत्र निरपेक्ष होती है। उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती। वो स्वतंत्र निरपेक्ष स्वपर प्रकाशक परिणमन है। ऐसा स्वपर प्रकाशक परिणमन में इसमें लिखा है ना कि ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभावे अवस्थित होने पर कर्मत्रक मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय वो ज्ञान का समय कौन सा है? स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। वो ज्ञान के समय क्या होता है कि ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान से शून्यता होने पर ज्ञेय पृथक है और ज्ञान पृथक है। अभी स्वपर प्रकाशक पर्याय में तो दोनों एक रूप दिखता है, वहां ज्ञान भी दिखता है और ज्ञेय भी दिखता है। तो वो ज्ञेय और ज्ञान पृथक पृथक होने पर भी यहाँ ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार प्रति समय बनता है। तो वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार जो बनता है उसमें जो ज्ञेय है उसका आकार होता है, उसको अपन हटा नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञेयाकार स्वतः सिद्ध ज्ञान का परिणमन है। और स्वज्ञायक है उसका यहाँ जानना चलता है ज्ञानाकार में, वो तो उसका स्वभाव है। और ज्ञेय का यहाँ प्रतिबिंब पड़ता है, तो प्रतिबिंब पड़ता है उसके कारण यहाँ ज्ञेयाकार नहीं होता है। वो ज्ञेयाकार तो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार तो अपना स्वतंत्र स्वभाव है, मगर स्वतंत्र स्वभाव में जैसा ज्ञेयाकार बना है ऐसा ही ज्ञेय बाद में होता है। ज्ञेय के निमित्त से यहाँ ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञेय के कारण से यहाँ ज्ञेयाकार नहीं होता, ज्ञेय को देखने से यहाँ ज्ञेयाकार नहीं होता। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार अपना खुद का स्वतंत्र स्वभाव है, निरपेक्ष स्वभाव है, वो भी शाश्वत स्वभाव है। प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय ऐसा उत्पाद होता रहता है।
वो उत्पाद दूसरे समय में ही हो जाता है, वही समय दूसरा उत्पाद होता है। तो प्रति समय वो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ज्ञानाकार रूप नयाकार, ज्ञानाकार रूप नयाकार, उसका स्वभाव चलता है। ये स्वभाव है, ये विभाव नहीं है। ज्ञानाकार रूप नयाकार केवल ज्ञान में भी है। इसको ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव बोला जाता है। अभी वो स्वभाव में जीव की गलती कहां हो जाती है कि वो अज्ञान हो जाता है, वो इसमें लिखा हुआ है। वो बहुत अच्छी बात है। एकदम शांति से इसको विचार करके समझने से एकदम ये सरल मार्ग है बहुत। इसमें कोई ज्यादा कठिनाइयां नहीं है। मिथ्यात्व समयवर्ती होता है, राग द्वेष भी समयवर्ती होता है। वास्तव में उसका अनुभाग तो द्रव्य कर्मों में पड़ा है। जीव की अवस्था में तो एक समयवर्ती ही होता है, और समयवर्ती में वो चेत जाए और उसका ज्ञान होता है, वहां उसकी नजर चली जाए, और वो ज्ञान कहां से आता है कि वो ज्ञायक की खान में से वो ज्ञान निकलता है, उधर उसका ज्ञान चला जाए, तो वही समय ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान करके वो ज्ञान नायक की सन्मुख होकर अवैध परिणम जाता है। ऐसी ये व्यवस्था जो ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान की एक अद्भुत व्यवस्था है, मगर उसमें ज्ञेय से उसको व्यावृत नहीं होना है। यह तो ज्ञेय को हटाना नहीं है, ज्ञेय तो ज्ञेय में ही है, उससे तो उसका ज्ञान हटा हुआ ही है। उसको हटाने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अधिकांश मान्यता ऐसी चलती है कि ज्ञेय से ज्ञान का उपयोग हटाओ। ज्ञेय से तो ज्ञान का उपयोग हटा हुआ ही है। ज्ञान का उपयोग तो ज्ञान का उपयोग में ही रहता है, वो ज्ञेय में गया ही नहीं है। वो ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञायक ज्ञायक में ही रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में ही रहता है। एक ज्ञायक की सत्ता है, एक ज्ञान की सत्ता है, एक ज्ञेय की सत्ता है। अभी वहां उसका एकत्व कैसे हो जाता है? वो खिचड़ा कर देता है सबको। फिर उसको ऐसा लगता है कि अब उसकी मैं जुदाई करूं। अरे ऐसी जुदाई ही है, इस तरीके से सोचना है। वो एक में हुए नहीं है कि उसको अलग करना पड़े, वो अलग ही है। तेरी मान्यता में एक में खो गया है। एक में ज्ञान और ज्ञेय कभी होता नहीं। ज्ञान अपनी सत्ता कभी छोड़ता नहीं, अपनी सत्ता छोड़ के कभी ज्ञेय में जाता नहीं। ज्ञेय अपनी सत्ता छोड़ के कभी ज्ञान में आता नहीं। ज्ञेय अपना ज्ञेय को प्रदर्शित प्रति समय करता है ज्ञान में, तो उसको ऐसा लगता है कि ज्ञान और ज्ञेय एक में खो गए हैं। वो एक में है नहीं सचमुच में। ये जो पेन है ना, पेन, ये जो है, ये ज्ञेय है। ज्ञेय, ये ज्ञेय है, इसको बोला जाता है ज्ञेय। और वो ज्ञेय के आकार है ना, वो ज्ञेय में है। ये ज्ञेय के आकार है, आकार माने स्वरूप। ये ज्ञेय का स्वरूप ज्ञेय में होता है, और वो ज्ञेय का स्वरूप ज्ञेय में है, तो ये निमित्तपन है यहाँ। और यहाँ ज्ञान होता है, यहाँ ज्ञान होता है। इसमें जैसा ये ज्ञेय का आकार है, ऐसा ही ज्ञान में एक आकार बनता है। आकार माने स्वरूप, माने के ज्ञान स्वरूप। आकार माने ये पेन है, ऐसा कोई आकार नहीं होता है यहाँ। इतना आकार है, ऐसा आकार यहाँ नहीं होता है। कोई लोगों को ऐसी भ्रमणाएं भी चलती है कि ऐसा आकार है ना, ऐसा आकार यहाँ हो गया, और वो आकार से मेरे को दूर जाना है। ऐसा नहीं होता है। आकार तो अपना ज्ञान का ही रहता है, इसका आकार नहीं होता है वहां। ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार स्वरूप बनता है। जैसा ज्ञेय है ऐसा ही ज्ञान में अपनी शक्ति से, अपने स्वभाव से जानना चलता रहता है। जानना 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 जानना, वो ज्ञान में ज्ञान को ही जानता रहता है, उसका स्वभाव है ऐसा जानना। मगर जो ज्ञेयाकार बनता है प्रति समय ज्ञान में, और ज्ञानाकार माने ज्ञान तो है ही वहां, मगर ज्ञेयाकार बनता है, ऐसा ही बाहर में ज्ञेय होता है। तो वो सचमुच में जानता है तो अपने ज्ञान को, ज्ञेय को नहीं जानता है। वो अपनी ज्ञेयाकार स्वभाव को जानता है, मगर ज्ञेयाकार स्वभाव
जैसा है वैसा ही बाहर में ज्ञेय है, तो उसको ऐसी भ्रमणा चलती है कि मैं ये ज्ञेय के साथ एक में खो गया हूँ, मेरा ज्ञान ज्ञेय में चला गया है, ये ज्ञेय ज्ञान में आ गया है, ऐसी उसको भ्रमणा चलती है। और वो एक मेकता का नाम ही खरेखर संसार है। ऐसी भ्रमणा कैसे छूटे कि वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वभाव है, उसको वो ज्ञान देखे कि यहाँ ज्ञान मात्र है, यहाँ ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ऐसा निमित्त सापेक्षता से ज्ञान का वर्णन किया जाता है। मगर निमित्त सापेक्षता से वर्णन करने पर भी वो ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं हो जाता। वहां तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। 15वीं गाथा में आया ना कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करके और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके, तो वो एक ही ज्ञान में भेद ज्ञान बताया है उधर कि जहां ज्ञेयाकार ज्ञान चल रहा है वहां से अपना ज्ञान की नजर हटा के तिरोभूत करना माने क्या होता है? तिरोभूत करना माने वो ज्ञेयाकार को कोई हटा नहीं सकता है। पंडित जी, ज्ञेयाकार तो बनते ही रहते हैं, उसको कौन हटा सकता है? वो 14 कलश में आया है, 247 कलश से कलश टीका में स्याद्वाद अधिकार की शुरुआत हुई। तो वहां ऐसी बात राजमल जी ने लिखी है, अमृतचंद्र आचार्य के कलश पर राजमल जी ने जो कलश टीका बनाई, वहां ऐसी बात लिखी राजमल जी साहब ने कि अज्ञानी को ऐसी भ्रमणा चलती है, ऐसी भ्रमणा चलती है कि ये ज्ञान में जो स्वच्छता के कारण ज्ञेयों के आकार जो प्रतिबिंबित होते हैं ना, उसको मैं भूस डालूं, उसको मैं निकाल दूं तो मेरा ज्ञान स्वच्छ हो जाएगा। उसको मैं नहीं रखूं उधर, क्योंकि वो मेरे को नहीं चाहिए नहीं। इसीलिए ऐसी भ्रमणा से वो अपने ज्ञान को भूस डालता है। ज्ञेयाकार जो परिणमन होता है प्रति समय, तो ज्ञेयाकार होता है, उसका पता भी कैसे चलता है कि अपनी ज्ञान की स्वच्छता बच गई है। ज्ञान की स्वच्छता के बिना ज्ञेयाकार नहीं हो सकता। तो अपने को तो ज्ञान की स्वच्छता देखनी है कि मेरे ज्ञान में तो स्वच्छता भरी हुई है, मेरे ज्ञान में तो जानना भरा हुआ है, मैं तो जाननहार हूं, मेरी स्वच्छता मुझे दिखती है। ज्ञेय के आकार नहीं दिखते मुझे, क्योंकि ज्ञेय के आकार जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं वो तो मेरा ज्ञान स्वभाव है, वो तो मेरी ज्ञान की स्वच्छता है। अगर ज्ञान की स्वच्छता नहीं होती तो ज्ञेय प्रतिभाषित ही नहीं हो सकते। ये जो है ना, ये भेद ज्ञान की विधि है। ज्ञायक भाव तो त्रिकाल शाश्वत है, अखंड है, ध्रुव है, नित्य है, एक रूप है, अनादि अनंत है। मगर वो ऐसा होने पर भी उसके ज्ञान श्रद्धा में अनादि से क्यों नहीं आता है? स्वभाव तो ऐसा ही है, स्वभाव में कुछ बिगड़ा नहीं है, मगर अनादि से वो उसका विकल्प भी कर रहा है कि मैं ध्रुव हूं, मैं अखंड हूं, मैं एक हूं, मैं ज्ञायक हूं। वो विकल्प चलता है और ज्ञान उसका बाहर गिरता है। ऐसे विकल्प कार्यकारी नहीं होते। कितना भी शुद्ध स्वभाव पड़ा हो, ज्ञायक भाव की परिपूर्णता जो शुद्ध भाव अधिकार में बताई 320 गाथा में, 6वीं गाथा में, 11वीं गाथा में, इसी बहुत गाथा में ज्ञायक भाव की शुद्धता का वर्णन के ज्ञायक भाव को उभरा दिया। परमार्थ प्रतिक्रमण की गाथा आई, उसमें भी ज्ञायक भाव की बहुत चर्चा आई। तिर्यंश नहीं, नारक नहीं, देव नहीं, मानव नहीं, मैं तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव में अवस्थित हूँ, सहज चैतन्य ना विलास स्वरूप आत्मा को ही मैं भाता हूँ, कोई गति में मैं गया नहीं, कोई गति का कर्ता नहीं, कोई गति का कार्यता नहीं, किसी का अनुमोदक नहीं, किसी का कारण भी नहीं। ऐसा मैं शाश्वत देव हूँ, ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा निविड़ तत्व हूँ, अबद्ध तत्व हूँ, मुक्त तत्व हूँ, अनन्य स्वरूप हूँ, नियत हूँ, एक रूप हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। ऐसा अपना परमात्मा तो अनादि से विद्यमान है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं कभी। मगर ऐसा होने पर भी उसकी दृष्टि क्यों नहीं होती?
उस तरफ ज्ञान अपना क्यों नहीं चला जाता? ज्ञान वो दृष्टि को विषय क्यों नहीं ऐसा लेता कि दृष्टि जैसे द्रव्यों पर पड़ जाए, दृष्टि का विषय पर दृष्टि चली जाए? ऐसा ज्ञान की निर्णय की भूमिका जब तक जीव की नहीं आती है तब तक ज्ञान में सच्चा निर्णय न होने पर वो श्रद्धा को जैसा विषय ज्ञायक भाव है ऐसा नहीं मिलता है। और ऐसा जब तक विषय नहीं मिलता तब तक ज्ञायक भाव उसको दृष्टिगोचर नहीं होता है। सब जीव की यही इच्छा होती है कि त्वरित में मेरे स्वभाव को भेंट जाऊं, मैं उसकी अनुभूति कर लूं और मैं रतन प्रकट कर लूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसी सब जीव की इच्छा होती है। नियम सार की तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा कि नियम से करने योग्य कोई भी कार्य हो तो शुद्ध रत्नत्रय नामक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करने के लिए उपादेय है, ऐसा लिखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए उपादेय है। उसको कितनी महत्वता लगी होगी उसकी कि उसने जो पर्याय को वही आचार्य 50वीं गाथा में पर द्रव्य पर भाव और हे बोलते हैं, 38वीं गाथा में सातों तत्वों का समूह को पर द्रव्य बोला है, वही आचार्य ऐसा लिखते हैं तीसरी गाथा में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए उपादेय है। जो बात जहां जिस तरीके से कहने में आए उस तरीके से जो अपने को समझ में आए तो कोई भ्रमणा खड़ी नहीं होती। और वो तीसरी गाथा में जो नियम से करने लायक उपादेय रूप कर्तृत्व बताया इसका कि यही करने लायक है, पद्म ब्रह्मलित धारी देव ने उसमें से कारण निकाला। आचार्य कुनकुल आचार्य ने तो कार्य की चर्चा की, कारण की चर्चा उसने नहीं की। मगर जो भावी तीर्थादिनाथ होने वाले हैं पद्म ब्रह्मधारी देव मुनिराज, वो खुद लिख के गए 212 कलश में कि हम भावी तीर्थादिनाथ होने वाले हैं। वो तीर्थादिनाथ भावी तीर्थंकर परमात्मा अपने मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव कि जिसने नियम शास्त्र की अद्भुत टीका की रचना की, उसने वो कार्य की बात कुनकुलाचार्य ने की तो उसमें से उसने कारण निकाला कि ये क्या कार्य होने के लिए कारण कोई है कि नहीं, वो कारण होना चाहिए। कारण अनुविधायी कार्याणि, तो कारण के बिना कार्य नहीं आता है। तो उसने उसमें से कारण निकाला कि जो सहज परम पारिणामिक भावे स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वही कारण नियम है। माने कि जे सहज शुद्ध पारिणामिक भावे स्थित वो द्रव्य स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक को उसके गुण और शुद्ध कारण नियम शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वो उसकी निरंतर वर्तती उसका निरंतर ध्रुव वर्तमान वो लेके उसने ध्रुव तत्व की परिपूर्णता साबित की। और ऐसा लिख के उसने बोला कि ये जो तू कार्य प्रकट करने के लिए उपादेय करना चाहता है उसका कारण तेरे में अंदर पड़ा है। तू ढूंढ रहा है बाहर मगर है कारण तेरे अंदर। तेरे शाश्वत देव में कारण बना पड़ा है, कारण की मूर्ति अंदर विराजमान है। भले उसको अकारण परिणामी भाव द्रव्य बोला जाता हो मगर जब वो परिणाम अहम करके अपने द्रव्य में अहम करके मैं शुद्ध परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा जब जयघोष करता है तब उसको कारणपणा अंदर में से ही कार्य में प्रकट हो जाता है और उसकी निर्मल पर्यायों की प्रकटता हो जाती है। ऐसी जो निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए उपादेय बोली, ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट करने का जो प्रकरण है वो भेद ज्ञान है। और वो भेद ज्ञान इसमें बताया गया है कि ज्ञान ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव अवस्थित होने पर भी कर्मकृत मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान समय पर उसका ज्ञान होता है, मिथ्या तो नहीं होता है। यहाँ उसका ज्ञान हो रहा है, नायक का भी ज्ञान हो रहा है, ये आश्रव भाव का भी ज्ञान हो रहा है। वो ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और वो ज्ञान में उसको
स्वपर प्रकाशक, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ऐसा सब जो बताया गया है उसमें मात्र ज्ञान देखना है कि मेरे को ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मेरे को ज्ञेय प्रतिभाषित होता है। वो ज्ञेय का सचमुच जानना कोई जीव को होता ही नहीं। सब जीव को ज्ञान का जानना होने पर ही उसको पता चलता है कि ऐसा ज्ञेय बाहर में विद्यमान है और ऐसा स्वज्ञेय मेरा स्वभाव अंदर में विद्यमान है। ऐसी ज्ञान की अवस्था प्रति समय प्रकट होती है। जब तक उसको उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञेय की एकत्व बुद्धि जब तक चलती है, ज्ञेयाकार ज्ञान को देख के उसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञेय यहाँ पड़ा है, ये ज्ञेय जानने में आता है, उसी का नाम है कि ज्ञायक जानने में नहीं आता है। और सचमुच में प्रति जीव को, सब जीव को, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर स्वयं खुद ही जानने में आ रहा है। उसको जानने जाना नहीं है, वो जनित रहा है, ज्ञान उसको जान रहा है। ऐसी एक स्वाभाविक व्यवस्था है। वहां अनुभव नहीं है, वहां वेदन नहीं है, मगर व्यवस्था ऐसी है। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आता है, मेरे को भी जानना में आता है। ऐसा जानना नहीं करता वो। ऐसा जानना कर ले तो स्वभाव तो ऐसा ही है, तो क्षण मात्र में उसको उसका परिणाम पलट जाएगा। और पलट जाके ज्ञेय की एकत्व बुद्धि है, वो भेद ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान के बीच में नहीं है, वो भेद ज्ञान करके अभेद की अनुभूति हो जाएगी। ऐसी इसमें ये गाथाओं में एक एक गाथा में रतन भरे हैं। समय सारजी परमागम यानी रत्नों की खान है। जहां आप देखो वहां आपको रतन ही मिलेंगे, मगर जब रतन दिखने में आते हैं ना, तब जीव को ऐसा लगता है कि अंधा कैसे चलता होगा। ऐसे वो आंख बंद करता है और रतन चला जाता है। ऐसे रतन भरे हैं इसमें, ऐसे रतन की खान है ये अपनी नीच निधि बताने के लिए आचार्य भगवान ने इसकी रचना की है कि तू परिपूर्ण परमात्मा है, तू शाश्वत देव है, तू त्रिकाल ध्रुव परमात्मा है, अनादि अनंत है, अखंड चैतन्य तत्व है। ऐसा तेरा स्वभाव अनादि से बच गया है। कितनी भी विपरीतता तेरी बहिर्लक्षता में हो जाए, मगर तेरा स्वभाव में कोई आंच कभी नहीं आती। ऐसा तेरा स्वभाव अनादि से बचा हुआ है, उसको तू जान ले। और ऐसा ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान प्रति समय जीव कर सकता है, क्योंकि ज्ञेय पृथक है। ज्ञेय आया नहीं है ज्ञान में, और ज्ञान कभी ज्ञेय रूप हुआ नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान माने भेद ज्ञान में क्या करना कि ज्ञेय और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान कहा जाता है। उसमें पुरुषार्थ क्या होता है? यथार्थ समझ का नाम पुरुषार्थ है। कोई पर्याय को पलटाना, ज्ञेय को दूर करना, ज्ञेयाकार को हटाना, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। वस्तु का स्वरूप और वस्तु का स्वभाव की यथार्थ समझ, ज्ञायक कैसा है, ज्ञान कैसा है, ज्ञानाकार कैसा है, ज्ञेयाकार कैसा है और ज्ञेय कैसा है, उसकी यथार्थ समझ जिस जीव को आ जाती है, उसी को ही वेदना बोला जाता है। कोई एक हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको पृथक करने की चर्चा ही नहीं होती है। अगर एक हो गया हो तब तो उसको जुदा पाड़ना पड़े, मगर एक हुआ ही नहीं, पृथक पृथक ही है। पृथक पृथक है, ऐसा ज्ञान करना है, ऐसा जानना करना है, वही सचमुच में यथार्थ पुरुषार्थ बोला जाता है। ऐसा पुरुषार्थ वाला जीव होता है, उसको निर्णय आ जाता है उसके ज्ञान में। वो निर्णय आगे बढ़ता रहता है। वो निर्णय आगे बढ़ते 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 उसकी ये स्वभाव के प्रति दृढ़ता होती जाती है, और वो दृढ़ता में उसको ज्ञायक भाव ऐसे उभरने लगता है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव शाश्वत तत्व हूँ, मैं तो उदार स्वभावी परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो सदा ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव से अवस्थित हूँ, ज्ञेय रूप में कभी हुआ ही नहीं हूँ।
ऐसी ज्ञेयों की निषेध की विधि में नास्ति करके अपनी जो ज्ञायक की विधि में आके जो अंदर प्रयोग में चढ़ता है उस जीव को अल्प काल में उसका ज्ञानानंद परमात्मा की भेंट हो जाती है। वास्तव में भेद ज्ञान माने कि जो भेद है दोनों के बीच में उसका ज्ञान करना होता है। दोनों के बीच में ज्ञान और ज्ञेय के बीच में भेद है, उसका ज्ञान करना उसको बोला जाता है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान माने इसको हटाना और इसको पकड़ना, उसका नाम भेद ज्ञान नहीं है। ऐसी इसमें अपूर्व बात लिखी है। इसमें कहना चाहते हैं कि ज्ञायक ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान से शून्य होने के कारण पर को आत्मा तरीके जानता ऐसा ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षाएं अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता हुआ। विशेष अपेक्षाएं माने पर्याय अपेक्षाएं, सामान्य अपेक्षाएं माने द्रव्य अपेक्षाएं, विशेष अपेक्षाएं माने पर्याय अपेक्षाएं अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम तो को करता होने से अज्ञान रूप ऐसा ज्ञान का परिणमन उसको करता होने से उसको कर्तापना हो जाता है। जब तक वो अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम का कर्ता बनता है तब तक उसको आत्मा को कर्ता कहा जाता है। ये अकर्ता मगर अपने स्वभाव को जब तक नहीं पहचाना तो पर्याय अपेक्षा से विशेष अपेक्षा से उसको कर्ता भी कहा जाता है। एक वो कब तक वो स्वीकार करना कि जब तक भेद विज्ञान आदि से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान की पूर्ण अर्थात भेद विज्ञान सहित थवाने लीधे आत्मा को ही आत्मा तरीके जानता हुआ वो ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षाएं भी ज्ञान रूप ही ज्ञान परिणाम से परिणमता हुआ। ज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान का परिणमन उस रूप ही परिणमता हुआ। केवल ज्ञातापना के कारण साथ अकर्ता हो। जब तक ज्ञान में ज्ञान रूप ही परिणमन चलता है, ज्ञेय रूप परिणमन नहीं चलता है, ऐसा जब वो मान लेता है तब वो साथ अकर्ता हो जाता है। साथ अकर्ता माने कि अकर्ता तो था मगर अकर्ता उसकी दृष्टि में आ गया तो उसको ऐसा बोला गया कि ये जीव साथ अकर्ता हो गया। ये अकर्ता स्वभाव तो उसका अनादि अनंत है। अकर्ता स्वभाव कभी कर्ता नहीं होता है, पर्याय में कर्तापना चलता है तो इस द्रव्य का ही परिणाम होने से पर्याय में कर्तृत्व चलता है तो वो पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके द्रव्य को भी कर्ता कहने का व्यवहार होता है। सचमुच में आत्मा कभी कर्ता कोई भी परिणाम का होता ही नहीं। आत्मा अगर परिणाम करे तो एक समय 100 समय कभी वो अकर्ता हो सकता नहीं है। ये सोगाथा में बात आई है कि एक समय परिणाम को आत्मा अगर करे तो हर एक समय परिणाम का कर्ता ही बना रहे। अगर मिथ्यात्व परिणाम को करे तो मिथ्यात्व का कर्ता चलता ही रहे। ऐसा परिणाम का कर्ता कभी आत्मा नहीं होता है। आत्मा सदाय अकर्ता है, सदाय भोक्ता है, सदाय अकारण है। वो सचमुच में कोई परिणाम का कारण वो बनने नहीं जाता है, परिणाम उस पर दृष्टि करता है तो परिणाम में शुद्धता प्रकट होती है। तब उसको परिणाम का कारणपणा द्रव्य में से मिला ऐसा कहने का व्यवहार है। सचमुच में तो परिणाम की क्रिया अपने सत्कारक से स्वतंत्र कर्ता करण क्रिया संप्रदान उपादान अधिकरण से होती है। उसका कोई कर्ता हर्ता है नहीं। जो एक परिणाम का कर्ता होवे समझे दर्शन का आप उसको कर्ता मान लो तो पूर्व की पर्याय में मिथ्या दर्शन था उसका भी कर्ता आत्मा हो जाएगा। इसलिए आत्मा सदाय कर्ता है, सदाय भोक्ता है और मात्र जाननहार है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ज्ञायक देव, ऐसा शुद्ध स्वभावी आत्मा जो आचार्य भगवान ने पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है और इसमें जो ठेर ठेर अकर्ता स्वभाव की घोषणा की है
अभी बंजो देवलाली में भी जो गाथाएं चली थी, माने कि वो गाथाएं इतनी सब प्रयोजन भूत है। 90 to 93 गाथा, 17-18 गाथा, 181, 82, 83 गाथा, 294 गाथा, प्रवचन सार की 80 गाथा, ये सब गाथाएं ज्ञान का स्वभाव को बताने वाली गाथा है। ज्ञान में नायक निरंतर बस रहा है, ऐसा मेरा चैतन्य और चिद विवर्तन, ऐसा मेरा स्वभाव है। चेतन माने द्रव्य, चैतन्य माने गुण और चिद विवर्तन माने एक समय की ज्ञान की उपयोग रूप दशा। उसको और अरिहंत को तू मिला ले तो अरिहंत जैसा ही तेरा आत्मा है, तो तेरी दृष्टि सीधी अरिहंत भगवान से छूट के तेरे द्रव्यों पर चली जाएगी, क्योंकि वहां द्रव्यों में चेतन, गुण में चैतन्य और उसका उपयोग में चिद विवर्तन है। यहाँ भी चेतन, चैतन्य और चिद विवर्तन है। ऐसे दोनों का मिलान करता है जो जीव, उसमें लिखा है कि उसका मोक्ष सही हो जाता है। मोह का उपशम नहीं लिखा, मोह का सही हो जाता है। अरिहंत भगवान जैसा है ऐसा ही अपने को मानने लगे और उपयोग से उसको मिला ले वर्तमान पर्याय में, तो उसका मोह का सही हो जाता है। बाकी की जितनी सापेक्षता चलती है ना, वो मिथ्यात्व से लेके जितने जितने गुणस्थान आगे बढ़ते हैं, वो सभी गुणस्थान की पर्याय सापेक्ष होती है। उपयोग निरपेक्ष है और वो निरपेक्ष उपयोग में निरपेक्ष द्रव्य बसता रहता है। बाकी की जितनी अवस्थाएं चलती रहती है, उसका परिणमन कर्म सापेक्ष होने से उसके साथ अभेद कर दिया है और उपयोग को आत्मा के साथ अभेद कर दिया है। ऐसे जो दो विभाग जिसको ख्याल में आ जाते हैं, उसको अरिहंत के साथ अपना आत्मा मिल जाता है। ऐसी प्रवचन सार की 80वीं गाथा में भी बहुत अच्छी बात आई है। ये सब गाथाओं में भेद ज्ञान भरा है। स्व और पर का भेद ज्ञान, स्व और कर्म का भेद ज्ञान, स्व और राग का भेद ज्ञान, स्व और इंद्रिय ज्ञान, एकांत से जो राग को मेरा मानता है, जानता है, उसका भेद ज्ञान, और एक समय की पर्याय से द्रव्य का भेद ज्ञान। इतने भेद ज्ञान के प्रकार है। उसमें स्व माने नायक भाव कॉमन है, बाकी सब फिरता रहता है। जहाँ जिसकी, जो जीव की जहाँ एकत्व बुद्धि चलती हो, वहां से उसको उधर से भेद ज्ञान करके स्व में आना चाहिए। तो ये भेद ज्ञान से अभेद में जाने का रास्ता खुलता है। ऐसा मार्ग आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है। वो सभी भली जीव, सभी मोक्षार्थी जीव अपनी भावना में उसकी केड़मनी करके इस प्रकार से भेद ज्ञान की विधि का यथार्थ निर्णय करके, अपना ज्ञान में निर्णय की यथार्थता प्रकट करके, ऐसा अपूर्व निर्णय में आके सविकल्प स्वसंवेदन की प्रकटता करके अपनी श्रद्धा और ज्ञान में निर्विकल्पता प्रकट करे, ऐसी मंगल भावना।